Hi, good morning, my dear student. Today we are going to continue your class 12th history paper, CBSE paper. Last year 2020 दिल्ली. देखिए मैं उसको लिखता हूँ CBSE या में से क्लास क्लास 12th हिस्ट्री CBSE sorry CBSE paper Delhi 2020 plus RT7. I hope you have remembered that what we studied. हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 15 तक. क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी क्वेश्चन नंबर 10. आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11. 1 मार्क्स क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे हैं इस समय. वन मार्क्स क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आज बात करेंगे. बट बिफोर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 आई वुड लाइक टू टेल यू दैट क्वेश्चन नंबर 10 बिकॉज यू कैन इजिली कनेक्ट द पेपर. आप अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करूं तो आप आसानी से उन चीज़ों को समझ लेंगे और फिर पेपर प्रॉपरली हो जाएगी. चलिए मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 मैं पढ़ता हूँ. फिर से देखिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अकबर इज नॉट करेक्ट. अकबर के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. अकबर वॉज द डिवोटी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती. दिस इज एब्सोल्युटली राइट. Akbar expanded and consolidated his empire. It's also right because as I told you the regime of Akbar during 1556 to 1605 especially their conquering year विजय का जो साल था the first state which was conquered by Akbar that was the Malwa. And last, that was Asirgarh during 601. Malwa 1563 and 1563 to 601 Asirgarh last. During that time, Akbar expanded their boundary to a very vast level. हम लोगों ने इन चीज़ों पे विस्तार से चर्चा की थी. मैंने इस क्वेश्चन को आपसे डिस्कस किया था आपकी लास्ट क्लास में. नेक्स्ट है he constructed Ibadat Khana due to his quest for religious knowledge. My dear student, I also discuss about that. The Akbar was one of the great ruler in the Mughal dynasty. Even he was illiterate, but he was more curious to know about that, the actual knowledge, the religious knowledge. So that's why after their Gujarat campaign and he conquered Gujarat, returned back, and in Fatehpur Sikri he established Ibadat Khana 1574-5. In the Ibadat Khana, first he promoted the Islamic scholars that they came, that they were invited by the government and discussed all the religious matter. Akbar listened very carefully. But once an incident happened. He saw that two ulemas
they were fighting with each other. They quarreled. So Akbar believed that either he is right, or next was right. And he also felt that कि अगर सत्य है तो वो दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं. So that's why he taken the very liberal approach and he opened the door of Ibadat Khana for all the religion. The Hindu, I mean to say that the Hindu religion or the Vedic religion, Jain, Parsi, Christians also. All the religious scholars, they reached on that place and discussed the religious matter with each other. And all the matters, all the discussion was heard by Akbar very consciously. ध्यान से सुनता था. It was the very important things for the Akbar कि वो इन चीजों को किस तरीके से लेता था. इबादत खाना स्थापित कराया. So that's why this statement is also right. Third statement, last statement, he had the cordial relation with Safavid over Kandahar. Safavid के साथ उसके संबंध कांधार विजय के बाद है. ये आपका जो लास्ट डी है, ये सही नहीं है. दैट इज नॉट करेक्ट. क्वेश्चन में आपके पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अकबर इज नॉट करेक्ट. सो आंसर इज डी. ही हैड कार्डिनल रिलेशन with Safavid over Kandahar. My dear, if you have remember, this question was written by me on board in my previous class. If you have continuously watched my video, then step by step you go up, आगे बढ़ते रहेंगे, you go forward. So, my dear, today we will start the next question. Question number 11. Read the following statements. Again, the statement based question. 10. Question number 10 is also the statement based question. And question number 11 is also the statement based question. Question number 10 पे हम लोगों ने चर्चा की मुगल काल में कुछ चीजें अकबर के संबंध में कुछ बातें कही गई थी. उसमें यह देखना था कौन सही और कौन सही नहीं है. सेम थिंग नेक्स्ट क्वेश्चन में है. कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कुछ स्टेटमेंट है उनको पढ़ना है. कहता है कृष्णदेव राय रूल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सपेंशन एंड द कंसोलिडेशन. सेकेंड स्टेटमेंट है देयर वाज पीस एंड द प्रॉस्पेरिटी इन हिज एम्पायर. देयर वाज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन हिज एम्पायर. थर्ड स्टेटमेंट ही वाज credited with buildings some fine temples. Fourth, he belonged to the Sangam dynasty. There are 4 statements. You have to choose which of the above statement are related to Krishnadev Rai. Which of above statement are related to Krishnadev Rai? इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट कृष्णदेव राय से रिलेटेड हैं आपको बताने हैं. ओके, लेट अस कम एंड देखते हैं क्वेश्चन को, लिखते हैं और आपको आसानी से इस क्वेश्चन को समझने में, बताने में आसानी होगी. माय डियर, कृष्णदेव राय वाज द प्रोमिनेंट रूलर. क्वेश्चन नंबर 11 कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Read the following statement. Okay. Statement A. First, Krishnadev Rai rule was Krishnadev Rai
Krishnadev rule was characterized, that नहीं है, rule was characterized by expansion एक मिनट 1 मिनट कहता है कि कृष्णदेव राय रूल वाज द कैरेक्टराइज by expansion and the consolidation ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 है, he was credited with building some fine temple. He was credited with buildings some fine temple. Some fine temple. Third question है, there was peace and prosperity. There was peace and prosperity. There was peace and prosperity in his empire. फोर है स्टेटमेंट आपका, स्टेटमेंट 4 है आपका, he belonged to the Sangam dynasty. He belonged to Sangam dynasty. चलिए अब ये हुआ आपका क्वेश्चन। इसी प्रश्न को हमने पढ़ा, कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कृष्णदेव राय के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। कहता है कृष्णदेव राय रूल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय expansion and the consolidation. He was credited with the building some fine temples. There was peace and prosperity in his empire. And lastly, he belonged to the Sangam dynasty. अब यहाँ पे ये संगम डायनेस्टी से कृष्णदेव राय
नहीं थे। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? तुलुक डायनेस्टी। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3, दैट इज राइट आंसर। ये ऐसे भी कर लें, 1, 2, 3 और ये रॉन्ग आंसर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में हैं, आप इन चीजों को समझिए। दीज आर ऑल गिवन इन योर बुक आल्सो। इफ यू रीड योर बुक minutely, then you can easily understand the question which is asked or which has asked। जो पूछा जाएगा या पूछा गया है, वो सारी चीजें आपको एग्जाम में क्लियर दिखेंगे यदि आपने क्वेश्चन पढ़ा है। आइए हम लोग 1 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 12, इफ यू रीड पेपर अकॉर्डिंग टू एपिग्राफी, अकॉर्डिंग टू एपिग्राफी, ओके, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एपिग्राफी। एपिग्राफिक लिखा हुआ है, एपिग्राफी छोड़ दीजिए, एपिग्राफिक PHIC कर दीजिए। क्वेश्चंस में है अकॉर्डिंग टू एपिग्राफिक एविडेंस, according to epigraphic evidence, among the following founded among the following founded the Vijayanagar Empire, the विजयनगर एम्पायर। एकदम आसान प्रश्न है। इफ यू विल रीड माई क्लास प्रॉपरली, देन इट वॉज एक्सप्लेन बाय मी नॉट वन टाइम, द डिफरेंट टाइम्स व्हेन आई टॉट यू द चैप्टर इंपीरियल स्टेट विजयनगर या इंपीरियल एम्पायर। जो चैप्टर हमने विजयनगर पढ़ा था, वहां पे मैंने एक पूरी की पूरी आपको बताई है कि संगम, सालू, तुलु डायनेस्टीज एंड देन आफ्टर अरिवाड़ू डायनेस्टी। मैंने आपको एक क्रोनोलॉजी बताई 1336 टू द 1700 तक की पूरी लंबी सी हिस्ट्री हमने डिस्कस की। मैंने आपसे कहा कि 1336 टू किस तरीके से 1400 और फिर 14 से 45 टू 49 1605 टू किस तरीके से एक एक स्टेप में संगम, सालू, तुलुवा एंड डायनेस्टी, तुलुवा एंड अरिवाड़ू डायनेस्टी रूल करती है। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या है, कहता है अब ये ऑप्शंस दे रहे हैं आपको। यहां पे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे देगा डायनेस्टीज के नाम, संगम, सालू, तुलु एंड अरिवाड़ू। इन चारों में पूछेगा कि हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर डायनेस्टी, हु वाज द, अभी क्या एपिग्राफिक आधार पे, अभी आपको किसके आधार बताना है? एपिग्राफिक आधार में बताना है कि इनमें से कौन क्या था, फाउंडर था, हु वाज फाउंडेड, किसने। हमको बताना है। ऑप्शन है आपका द सल्तनत ऑफ दक्कन, ए, द सल्तनत
या सुल्तान ऑफ दक्कन लिखिए, ज्यादा अच्छा है, सुल्तान ऑफ दक्कन। हमने आपसे कहा या तो सल्तनत ने स्थापित किया, सल्तनत में कई सारे थे, तो सल्तनत में कई सारे रूलर्स आ जाएंगे, तो अगर आप ऐसे लेंगे तो वहां पे आपको क्या क्या मिल जाएगा। आप अगर सल्तनत चलेंगे तो गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टीज, इलबारी, फिर उसके बाद आएंगे तो खिलजी, फिर उसके बाद आएंगे सैयद, लोधी, तो आपको एक पूरी श्रृंखला आपको मिलेगी। हमें किस स्टेप में चलना है, हमें स्टेप में चलना है जो ऑप्शन है। तो हमने क्या किया, ऑप्शन ए सुल्तान ऑफ दक्कन, फर्स्ट ऑप्शन। बी गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा, गजपति रूलर ऑफ उड़ीसा। सी हरिहर एंड बुक्का, एंड डी चोला ऑफ तमिलनाडु। चोला ऑफ तमिलनाडु। तो ए बी सी डी आपको क्या बताना है, विजयनगर को किसने फॉर्म किया एपिग्राफिक एविडेंस के आधार पे। तो अभिलेखों के आधार पे आपको बताना है कि विजयनगर की स्थापना किसने की। ऑप्शन आपका है सुल्तान ऑफ दक्कन, गजपति रूलर ऑफ उड़ीसा, हरिहर एंड बुक्का एंड चोला ऑफ तमिलनाडु। आपका सी आंसर एग्जैक्टली सही है, हरिहर एंड बुक्का। यहीं से मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन का अगर पैटर्न बदल दे, आपका आंसर होगा सी, आंसर सी। अगर आपका क्वेश्चन में ऑप्शंस बदल दे, ऑप्शंस क्या बदलेगा, सपोज करिए ऑप्शन बदलता है, कहता है यहां पे लिख दे संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरिवाड़ो। आई मीन संगम डायनेस्टी, सालुक डायनेस्टी, तुलुक डायनेस्टी, अरिवाड़ो डायनेस्टी। तो सेम क्वेश्चन यही है, तो आपको क्या लिखेंगे उसमें से, संगम डायनेस्टी। हरिहर और बुक्का दे बिलोंग्स टू संगम डायनेस्टी। तो देन आफ्टर वी कैन इजीली से द संगम डायनेस्टी was the founder of Vijayanagar. My dear student, this chapter, this question is very important. Why? Because in this chapter, what we read? We read that the Vijayanagar was the very powerful empire, powerful state during 15th century. About Vijayanagar, the first time Babur explained in his autobiography what he wrote. He wrote that when I was reached in India, I found the 5 powerful empire, powerful state in Hindustan. Among them, among 5, 3 were the Muslim empire, state, and 2 were the Hindu rulers. And among 5, the supreme powerful state was Vijayanagar. My dear student, without any hesitation you can say during 15th, 16th century, the Vijayanagar that was on there, the prime post, Vijayanagar represent the Hindu culture. The different type of temples, different types of the religious practices that was act that was done during that time किया जा चुका है। या
We have also studied about Mahanama Dibba. We also read the Vitthal temple, Hazara temple. We also studied in your book also the paragraph, the topic, the royal centers. When you will read the topic royal centers, where the first or second line clearly mentioned that there were the 70 temples, 60 temples in that area. We can say that this is the royal palaces area. But we should never forget that the huge amount of temple gives us some information, some messages. Here one question arises that who was the maker of this temple? Who made them? So question is that needed their answer. The Vijayanagar rulers. And during that time the powerful ruler Krishnadev Raya belonged to Turuva dynasty. He made the different temples and established the city also, Nangalapur. So, my dear student, you should never forget about that. आपको इनके बारे में कतई नहीं भूलना चाहिए. इन चीजों को जब भी आप एक्सप्लेन करें तो आपको इसको समझना चाहिए. विजयनगर से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप. अमर नायकास. I hope you have remember when we was solving the All India CBSE examination paper history 2020, where the one question arises, where one questions we find out that who were Amar Naikas, discuss. And we discuss about the very clearly about that Naikas, Amar Naikan system. And I also taught you, I also told in my that class, the Amar Naikas, they were the base of the Vijayanagar administration. That was the innovative steps, the major innovation, major political innovation, विजयनगर एम्पायर. और हमने उसको एकता से जोड़ा किस तरह. तो ये क्वेश्चंस आपको विजयनगर से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं. सो माय डियर, यू हैव टू नेवर फॉरगेट अबाउट दैट एंड यू शुड डू वेरी हार्ड वर्क. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डू यू थिंक द फ्रांसिस्को बर्नियर वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट? हाउ डू यू थिंक the Francois Bernier was closely associated with the Mughal court. Mughal court. आंसर क्या होगा? सीधा सा क्वेश्चन है. फ्रांकोस बर्नियर
कैसे मुगल कोर्ट से संबंधित था, एक्सप्लेन करें। आंसर आप लिख सकते हैं, द फ्रैंकोस बर्नियर was closely associated with the Mughal court as a physician to Prince Dara Shikoh. Francois Borneo was a physician. He was appointed in the Shah Jahan court as a physician. किसका? दारा शिकोह का. The eldest son of Shah Jahan and later as an intellectual and scientist of Danishmand Khan, an American Nobel at the Mughal court. बाद में दानिशमंद खान को स्थापित किया। तो ये चीजें हैं। We will discuss this question again in your next class. आज के लिए इतना ही। Goodbye and take care.